નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો લોકમૈત્રી ન્યૂઝ। જોઈએ આજના સમાચાર। ગુજરાત રાજ્યમાં રોજગાર નિર્માણ કેન્દ્ર સરકારના સૂક્ષ્મ લઘુ મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રી નારાયણ રાણે આજે વડોદરાની મુલાકાતે પધાર્યા હતા। કેન્દ્રીય મંત્રી બન્યા બાદ તેમણે વડોદરા ખાતે કોર બોર્ડની પ્રથમ બેઠક યોજી હતી। આ બેઠક સંદર્ભે યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન મેયર કેયુરભાઈ રોકડિયા, સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ તથા કચ્છર બોર્ડના ચેરમેન ડી કુપારામુ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પત્રકારો સાથે સંવાદ દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેવી રીતે રોજગાર નિર્માણ કરવું, બેરોજગારી ખતમ કરવી, દેશની જીડીપી વધારવી તથા સૂક્ષ્મ લઘુ મધ્યમ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન તથા ફાઇનાન્સ આપવું તે કેર બોર્ડની કામગીરી છે અને તે સારી રીતે દેશમાં પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યું છે। ગુજરાતની સરખામણીએ તામિલનાડુ, કર્ણાટક, કેરળમાં કોર કામ વધારે છે। ગુજરાતમાં પણ તે થવું જોઈએ, જેથી અલગ અલગ રાજ્યોમાં આ સંદર્ભે બેઠક યોજાશે। ગુજરાતમાં બેકલોગ પૂર્ણ કરવા તે દિશામાં વધુ કામ હાથ ધરાશે। હાલમાં ગુજરાત રાજ્યમાં એક્સપોર્ટ 4,000 કરોડ છે, જે આગામી 5 વર્ષમાં 7,000 કરોડ સુધી લઈ જવાનો લક્ષણ છે। અત્યાર સુધી 58 લાખ રોજગારોનું નિર્માણ કરી ચૂક્યા છે, જે રાજ્યમાં સમુદ્ર હોય તેવા રાજ્યોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ બાકીના રાજ્યોને સાઉથ તરફથી મટીરિયલ પૂરું પાડ્યા બાદ ફેક્ટરી વિકસાવશે। ખાસ કરીને કોરોના કાળમાં બંધ પડેલા નાના ઉદ્યોગો માટે કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે। સાથોસાથ જે કામગારો જતા રહ્યા છે તેમને પરત લાવી ઉદ્યોગોને તમામ સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે। તદુપરાંત ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર સાથે બેઠક બાદ ઉદ્યોગોને લોન સમયે પડતી મુશ્કેલી દૂર કરાશે। આજના આધુનિક યુગમાં લેટેસ્ટ ડિજિટલ મશીનરીને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ। પ્રધાનમંત્રી તરફથી જાહેર કરાયેલા 20 લાખ કરોડ પેકેજમાંથી 3 લાખ કરોડ ખર્ચ થયો છે, જ્યારે 1.25 લાખ કરોડ અન્ય યોજના માટે છે। ભારત દેશ મહાસત્તા બનવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે ક્યોર બોર્ડની ભૂમિકા મહત્વની રહેશે। કિસાન આંદોલન મુદ્દે જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષ કિસાનોને ગેરમાર્ગે દોરી ગંદી રાજનીતિ કરી રહ્યું છે। શું ખેડૂતને મરજી મુજબ પાકનું વળતર મળે તેનાથી કોંગ્રેસને વાંધો છે? આવનારા દિવસોમાં કિસાન મોદી શાહનો જ સાથ આપશે। જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અંગે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં મહારાષ્ટ્રની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ છે। મહારાષ્ટ્રનું ડેવલપમેન્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરી રહ્યું છે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે શિવસેનાએ મુખ્યમંત્રી પદ માટે હિન્દુત્વ ત્યાગ કર્યું છે। હાલની સરકાર નહીં ચાલે, તેમનું એક ટાયર પંચર પડી ગયું છે। का ऐलान किया है और उसकी असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी के कई जगहों पर देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे जिस तरह से आने वाले विधानसभा जो चुनाव है यूपी और सब मानते हो उसके वजह से ये पूरा किसान आंदोलन फिर से खड़ा किया जा रहा है, फिर से उसको बुरा बनाया जा रहा है? इसका जवाब एक्चुअली मैं नहीं देना चाहिए, मगर आपने पहला एक क्वेश्चन पूछा तो मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। ये किसान आंदोलन है या हमारे विपक्ष का राजनीति है? आंदोलन है ना, क्यों किसान जिस विषय पर आइए बैठिए प्लीज़, और एक कुर्सी रखो, हाँ और एक चाहिए और ला के रखो, बैठिए प्लीज़। जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों को करवाते हैं अपोजिशन के लोग। जो अमेंडमेंट कानून में हुई है वो हमारे किसानों के हित में है, तो मैं समझता हूँ किसानों के हित में किसान अपना क्रॉप तैयार करने के बाद दुनिया में कहाँ भी बेच सकता है। यह अमेंडमेंट किसानों के लिए अच्छा है, जिधर दाम अच्छा मिलता है, पैसा मिलता है वो बेचना। तो अपोजिशन क्या चाहते हैं, उनको दाम अच्छा नहीं मिलना चाहिए क्या? मगर अपोजिशन ये राजनीति कर रहे हैं किसानों को लेकर, उसमें सफल नहीं हो जाएंगे। लोग समझते हैं, किसान समझते हैं ये सब राजनीति के वजह से कर रहे हैं। तो आने वाले कौन से भी चुनाव में मैं समझता हूँ हमारे किसान अपोजिशन का नहीं सुनेंगे। हमारे तरफ माननीय मोदी साहब, माननीय अमित जी शाह
इनके साथ ही रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। आप जहाँ महाराष्ट्र से आते हो वहाँ पे शरद पवार जी ने भी इसका खुलकर विरोध किया है और उनके पास तो क्या गन्ना किया? गन्ना गन्ना किसानों जो किसान है, जो गन्ना जो फैक्ट्रीज है, काफी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो मानते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी इसका असर होगा। महाराष्ट्र में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा महाराष्ट्र में। और आप किसी लीडर का नाम लो, किसानों के दिल में किसके बारे में रिस्पेक्ट है, इसकी जांच पहली करिए। और वो सुनने वाले हैं क्या? आज जो भी काम पिछले 7 साल से देश में महाराष्ट्र में हुआ है डेवलपमेंट का या लोगों का शिकायत दूर करने का, वो बीजेपी कर रही है, माननीय मोदी साहब कर रहे हैं। तो दूसरा कोई श्रेय नहीं ले सकते। महाराष्ट्र की हालत बहुत खराब है, फाइनेंशियली सभी कुछ भी नहीं। किसानों की हालत है, लोन माफ नहीं होगा, कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो क्या सर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो सकता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं कोई ज्योतिष को मिलके नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे सर देवेंद्र फडणवीस जी बोल चुके हैं कि शिवसेना हमारा पुराना साथी है, आने वाले समय में भी वो साथी बन सकता है। जो एक्सपोर्ट है हमारे कोर की गुजरात में, वो लगभग 4,000 करोड़ तक है। आने वाले 3 से 5 साल में हम 7,000 करोड़ तक जाना चाहता है। उसका प्लानिंग आज के मीटिंग में होगा, टुडेज मीटिंग, आज के मीटिंग में होगा। और काफ़ी चर्चा होगी कि कोर इधर इस गुजरात में किस तरह का क्लस्टर देने वाले हैं, किस तरह से रोजगार निर्माण करने वाले हैं, वो टेक्निक क्या होगी। एक कोर का क्लस्टर कितने साल में पूरा होगा, आज समझो सैंक्शन किया तो कितने साल में पूरा होगा, उसका लिमिट भी या घोषित किया जाएगा, जल्दी क्लस्टर भी घोषित किया जाएगा। और यहाँ का जो बैकलॉग मैं समझता हूँ गुजरात का है, वो हम भरना चाहते हैं, रोजगार निर्माण करना चाहते हैं। या अभी तक की मुझे जानकारी के मुताबिक 58 लाख रोजगार तैयार कर चुके हैं, बराबर ना? कुछ फिगर है, करेक्शन करना है तो करो आप लोग। 58 लाख हम बढ़ाना चाहते हैं। और उसी तरह हमारा काम इस कोर बोर्ड का अभी तक जो चला है, सभी मेंबर आएंगे। कोर बोर्ड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, देश में काफ़ी रोजगार निर्माण करने का काम किया है। माननीय पंतप्रधान मोदी साहब अपने कोर से या हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग से जो काम चाहते हैं, उस तरह का काम हम करना चाहते हैं। जो हमारे पंतप्रधान जी कहते हैं कि हम महासत्ता बनने जा रहे हैं, तो हम समझते हैं हमारा डिपार्टमेंट जिसमें कोर है, डिपार्टमेंट है, कोर बोर्ड है, वो डिपार्टमेंट महासत्ता के लिए हमारा देश जाने के लिए हम जो उद्योग है हमारे विभाग में, सूक्ष्म है, लघु है, मध्यम है, वो सभी उद्योजक को प्रोत्साहित करना, फाइनेंस करना, ये हम उसी तरह ये उद्योजक तैयार करना, रोजगार बेकारी है वो ख़त्म करना, और देश की जीडीपी किस तरह बढ़ती है या बढ़ाना, ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। अभी तक जो काम हुआ है उसके बारे सभी जानकारी आगे आपको मिलेगी, लिखित मिलेगी। मगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंड कोई आगे टारगेट है कि हमें कितना अचीव करना है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, कितने तक पहुंचना है? नहीं, क्या है 2 ईयर नहीं बोल सकता, हमारा कम से कम अभी जो क्लस्टर है वो तैयार करने में 4-5 साल लगते हैं, मगर हम वो 2 साल में अभी हमने डिसीजन लिया 2 साल में होना चाहिए कंप्लीटेड 2 इयर्स को क्लस्टर। हाँ, अभी का लिमिट है 5 साल आपका, मगर 2 साल में करने का हमारा डिसीजन हुआ है। तो 2 साल में करेंगे तो अगले 2-3 साल में अब अभी तक की जो हम 58 लाख ही है तो उसके डबल
कम से कम 1,20,00,000 खबर है ना, 1,20,00,000 तक हम जाएंगे। गुजरात में आपने एक चीज बोली कि मतलब कि पावर बोर्ड सिर्फ साउथ में प्रेजेंस ज्यादा है, तो कौन कर रहे हैं एमएसएमईज को ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए? जैसे देखिए, हम एमएसएमई में काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, तो ये डिजिटल बोलो या लेटेस्ट मशीनरी आनी चाहिए। ये हम इसमें हम जो अभी लोन देंगे तो लेटेस्ट आप जो करें डिजिटल टाइप मशीनरी भी देंगे लोन पे, तो वो हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्होंने भी कहा है कि शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा से मानता है और वो बीजेपी के साथ पहले भी था, अभी भी रह सकते हैं और आने वाले समय में भी हम जुड़ सकते हैं। भाई आप साहब, मानते हो कि वो जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी? मुझे क्यों दिक्कत होगी? अलायंस होगा तो मेरे को दिक्कत नहीं, मगर आप जो कह रहे हैं ना, उनको कोई एविडेंस नहीं है, कभी कहा, किसके सामने कहा। अभी देवेंद्र ने जो भी कहा है ना, पुराने साथी तो थे ना, वो आप लोग को सबको मालूम है कितने साथ थी। फिर मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व का त्याग हो गया, वो भी आप जानते हैं। तो आगे क्या होगा वो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र ही जानता है, तीसरा आदमी को मालूम नहीं है अभी तक। आपको लगता है 3 साल सरकार चलेगी महाराष्ट्र में? और हाँ, सरकार चलेगी और महाराष्ट्र में सरकार चलेंगी, मगर अभी चालू है उनकी नहीं चलेंगी। सरकार तो चलते रहते हैं, हाँ, मगर अभी जो है उनका नहीं चलेंगे, वो टायर अभी पंक्चर होते आए हैं। कौन कौन से स्टेट में? देखिए, पहली बात तो जिस स्टेट को समुंदर है, सी है, ऐसे स्टेट को हम बढ़ावा देने का सोचा है। उसके बाद जहाँ नहीं है और बेकारी ज़्यादा है, तो वहाँ का साउथ का जो हमारा मटेरियल है वो हम जिधर समुंदर नहीं है या कोर नहीं है उस एरिया में लेके जाना चाहता है, और साउथ से सब मटेरियल हम वहाँ पहुँचाएंगे और फैक्ट्री वहाँ चालू करेंगे।